حضرات محترم، کامل مومن وہ شخص نہیں کہ جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو، بلکہ مکمل ایمان والا کامل مومن وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کامل وہ شخص ہے کہ جس کے نزدیک، جس کے دل میں اس کے بھائی سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ، اس کے ماں باپ بھائی بہن سے زیادہ میں محبوب ہوں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ مومن کامل ہے، مکمل ایمان والا ہے۔ حضرات محترم، آج دیکھا جاتا ہے، آج ہم نے بھی آقا سے محبت کی ہے، ہم بھی آقا سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی آقا سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آج ہم نے محبت تو کی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا محبت کرنے کا یہی مطلب ہے؟ محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ محبت تو بہت کرتے ہیں، اگر جان مانگو گے تو جان دے دیں گے، لیکن نمازوں کی بات آئے تو میرا نوجوان کتنی دور ہے۔ مصطفیٰ کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، داڑھی ہمارے چہرے پر نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا دیوانہ بتلاتے ہیں۔ میرے نوجوان، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج بھی آپ نے اپنے دل میں مصطفیٰ کا پیار بسا لیا، مصطفیٰ کا عشق بسا لیا، اللہ اکبر، تو میں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اگر دل میں پیارے مصطفیٰ کا عشق بسا لیا تو یہ عشق کی آگ ایسی آگ ہے میرے نوجوان، آج بھی اپنے سینوں میں نبی کے عشق کی آگ لگا لو، یہ وہ آگ ہے، اس آگ کے سامنے ساری آگیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، اس آگ کے سامنے ساری آگیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، یہاں تک کہ جہنم کی آگ بھی میرے مصطفیٰ کی آگ کے سامنے کم ہے۔ تو میرے نوجوانوں، آقا سے پیار کریں۔ شاعر کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے نوجوانوں، مصطفیٰ سے پیار کریں۔ آج دیکھیں ہماری سماج کا حال، اللہ اکبر، کیسے حالات چل رہے ہیں۔ ہم نے کہاں مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، کہاں مصطفیٰ سے عشق کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، یار پیار کرنا تھا تو کس سے کرنا تھا؟ مجھے بتا تو صحیح۔ اگر آج دیکھا جائے، اللہ اکبر، اپنے سماج کے اندر اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا آج میرا نوجوان کس سے محبتیں کرتا ہے، میرا نوجوان کس سے پیار کر رہا ہے۔ اگر کسی سلمان خان نے اگر فلم کے اندر کوئی کٹی پینٹ پہن کر کے اللہ اکبر دکھلائی ہو، میرا نوجوان اسی کٹی پینٹ کو اپنے آپ جسم پر پہنتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، یہ اسلام میں جائز ہے کٹی پہننا، کٹی پینٹ پہننا؟ مجھے بتا تو صحیح، اے میرے مسلمان، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس سلمان خان سے محبت کرنے والے، ہیرو سے محبت کرنے والے، ہیروئنوں سے محبت کرنے والے، مجھے بتا تو صحیح، یہ تو محبت کرتا ہے، یہ تیری دنیا بھی خراب کر رہی ہے، مجھے بتا تو صحیح، اور تیری آخرت بھی خراب کر دیں گے۔ ان ہیرو سے محبت کرو گے، ہیروئنوں سے محبت کرو گے، یہ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اور آج دیکھا جاتا ہے، میری نوجوان بہنوں کو دیکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، ہیروئنوں سے محبت کرتی ہیں، ان کے سامنے دیکھا جاتا ہے ہیروئنوں سے پیار کرتی ہیں۔ اگر کسی ہیروئن نے آدھے کپڑے پہن کر کے آئی ہے، اللہ اکبر، میری سماج کا حال دیکھیں، یہ ہو چکا میرے سماج کے اندر، ہماری جوان بہن ہے، ہماری جوان بیٹی ہے، وہی
कपड़े पहन करके बाजारों में घूम रही है, वही कपड़े पहन करके शॉपिंग करने के लिए जाती है, वही कपड़े पहन करके शादियों में जा रही है। अल्लाह अकबर। जवान भाई के सामने, जवान बाप के सामने, जवान बेटे के, जवान भाई के सामने उसकी बहन अल्लाह अकबर आधे आधे कपड़े पहनकर आ रही है। कितने बेगैरत बाप है वो, कितने बेगैरत भाई हैं वो, जो अपनी बहनों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं, अपनी बेटियों को ऐसे कपड़े पहना करके फख्र महसूस करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे नौजवान, तूने जो अपनी बेटी को ऐसे कपड़े ला करके दिए हैं, अपनी बेटी को, जब बेटी कपड़े पहन करके शॉपिंग करने जाती है, बेटी कपड़े पहन करके अल्लाह अकबर शादियों में जाती है, बाप कितना खुश होता है, भाई कितना खुश होता है। जरा देखो तो सही मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, देखो तो सही मेरी बहन के बाल बिखरे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और नालायक भाई और नालायक बाप, तुझे हो क्या गया है? तूने अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनाए हैं और मेरी जवान बहन अल्लाह अकबर, घर में सीरियल चल रहा है, घर में टीवी चल रही है, सामने भाई भी बैठा है, सामने बाप भी बैठा है, सामने ताया भी बैठे हैं, सामने ताई भी बैठी है, रिश्तेदार बैठे हैं, सामने टीवी लगी हुई है, सामने सीरियल चल रहा है, सामने फिल्म चल रही है। मुझे बता तो सही फिल्म के अंदर क्या होता है? फिल्म के अंदर मौलाना नात पढ़ते हैं, फिल्म के अंदर क्या मौलाना नाते पढ़ते हैं, क्या मौलाना तकादीरें करते हैं? ना मेरे नौजवान, ना मौलाना नाता पढ़ के नहीं सुनाता है, मौलाना तकरीर करके नहीं सुनाता है, बल्कि फिल्म के अंदर क्या आता है? वही हीरो हीरोइन वाली बातें आती हैं, वही आधे आधे कपड़े पहन करके अल्लाह अकबर, इतनी बेहयाई हो चुकी है। सामने बाप बैठा है, जवान बेटी को अपने सामने टीवी दिखा रहा है और फख्र महसूस करता है। ऐ मेरी जवान बहनों, ऐ मेरी नौजवान बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज तुमने हीरोइनों से तो मोहब्बत कर ली है, उनके 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 अमल पर फॉलो करती हो, तुमने उनसे तो मोहब्बत कर ली है, जैसा वो काम करके आती है ऐसे ही तुम फोकस कर लिया करती हो। अरे होना तो ये चाहिए था, तू तो मुस्तफा की शहजादी की कनीज है, अरे तू तो खातून जन्नत की कनीज है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ऐ मेरी बहन जरा बता तो सही, तूने अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे फिल्मी दुनिया की हीरोइनों के चक्कर में आकर के तूने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। अरे तूने कब्र की मंजिल को नहीं देखा है, मुझे बता तो सही। अरे खातून जन्नत की कनीज है, होना तो ये चाहिए था, तुझे दुनियादार हीरोइन का अमल नहीं करना था, बल्कि तुझे तो मुस्तफा की बेटी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की सीरत पर अमल करना था, जैसे आपने किया था, तुझे तो उस पर अमल करना था। ऐ मेरी जवान बहनों, तुम्हें डर नहीं लगता कि कब्र में नहीं जाना है, क्या मौत नहीं आनी है? मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, जब आप लिपस्टिक लगा करके, फैशन करके, आगे कपड़े पहन करके बिया शादियों में जाती हो, अल्लाह अकबर, किस नियत से जाती हो कि जाकर के जब शादी के अंदर जाऊंगी मुझे फला मर्द देखेगा, मुझे फला लड़का देखेगा, इस नियत से जाती हो कि कब्र से नहीं डरती हो? अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जिस लड़की ने अपना हाथ किसी गैर महरम के हाथ में दिया है, उसकी कब्र में 99 सांप छोड़े जाएंगे। इसमें एक सांप की ताकत का आलम यह है, अगर वो सांप अपने दुम को पहाड़ पर मार दे, अगर वो सांप दुनिया में सांस ले ले, उसकी सांस की वजह से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर वो अपने दुम को पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ चूर चूर हो जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। ऐ मेरी बहन, तू तो बड़ी नाजुक है, तू तो बड़ी डरा करती है, मुझे बता तो सही। अगर कमरे के अंदर तन्हा मौजूद है, अगर कमरे के अंदर अगर चोरी या बर्तन खटखटाने की अगर आवाज भी आ जाए, अगर प्लेट जमीन पर गिर जाए, उसकी आवाज को सुन करके डर की वजह से तू कमरे से बाहर निकल करके आ जाती है, मुझे बता तो सही, कब्र के अंदर कौन होगा? बंद कोठरी होगी, कब्र के अंदर कौन होगा? वो बंद कोठरी होगी, मुझे बता तो सही। ऐ मेरी नौजवान बहनों, फिर हम ये काम क्यों करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे दुनियादार हीरोइनों का इख्तियार न करना, उनकी सीरतों पर अमल न करना, बल्कि जो खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा ने अल्लाह अकबर अमल किया है, उनकी सीरत पर अमल कर लेना, तो दुनिया भी कामयाब हो सकती, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और मेरे नौजवान भाई, जो मैं बता रहा था कि आपने सलमान खान से तो मोहब्बत की है, आप
अपने हीरो से तो मोहब्बत की है, मुझे बता तो सही, तूने जो हीरो से मोहब्बत की थी, ये हीरो से मोहब्बत करना ये तेरे दुनिया में तो काम आ सकता है, लेकिन आखिरत में कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अरे कौन कहता है? आप कहते हो मौलाना वो तो स्टार है, मौलाना सलमान खान तो स्टार है, मौलाना वो तो बड़े बड़े लोग हैं। अरे अगर मोहब्बत करनी है, मेरे नौजवान मोहब्बत करनी है तो हीरो से क्यों करता है? मोहब्बत करनी है सलमान शाहरुख से क्यों करता है? मोहब्बत करनी है तो मैं बताता हूं तुझे, अगर मोहब्बत ही करना चाहता है, अगर हीरो से मोहब्बत करोगे तो आखिरत में कोई काम आने वाला नहीं है। अरे ऐसे से मोहब्बत कर ले जिससे दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अगर मोहब्बत करना है कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आजा अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत कर ले, आजा उमर फारूक आजम से मोहब्बत कर ले, मौला अली से मोहब्बत कर ले, उस्मान गनी से मोहब्बत कर ले। अल्लाह अकबर, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर तू इनसे मोहब्बत करेगा तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इनसे मोहब्बत कर ले, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हमने कहां मुस्तफा से इश्क किया है, हमने कहां मुस्तफा से प्यार किया है। मेरे नौजवान में बता रहा था इश्क करने का मतलब क्या है, इश्क कहते किसे हैं, हमने इश्क कहां किया है। तुझे एक वाकया सुना करके चलता हूं, एक वाकया सुना करके चलता हूं। अंसार की एक औरत, उसका भाई, बेटा, उसका शोहर, तमाम लोग जंग में शरीक हैं। जंग अहद चल रही है, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ कुफ्र है। हक को बातिल की घमसान लड़ाई चल रही है। मेरे नौजवान, अब उस औरत को देखना, कैसा इश्क किया था औरत ने। अल्लाह अकबर। नौजवानों, इस वाकये को सुन करके अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, औरत ने कैसा इश्क किया था। अल्लाह अकबर। अब हक को बातिल की घमसान लड़ाई चल रही है, भाई भी शरीक, जंग में बाप भी शरीक, बेटा भी शरीक है, लेकिन अल्लाह अकबर, अब वो औरत जंग के हालात मालूम करने के लिए जब जंग अहद की तरफ जाती है, अल्लाह अकबर, जंग अहद की तरफ चल रही थी। अब जैसी जा रही थी, रास्ते में लोगों से मुलाकात हो जाती है। रास्ते में लोगों से मुलाकात हो जाती है। लोगों ने कहा, खातून कहां पर जा रही हो? कहा, मैं जंग अहद जा रही हूं। इतना कहा, कहती किस लिए जा रही हो? कहा, मैं जंग अहद जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। उनमें से एक ने कहा था, खातून तेरा बेटा इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। अल्लाह अकबर। उस औरत ने कहा था, मुझे ये बताइए मुस्तफा कहाँ पर तशरीफ फरमा है? मैं अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मुझे मुस्तफा का पता बता दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतने में दूसरा कहने लगा, ऐ खातून तेरा शोहर भी दुनिया को अलविदा कह चुका है। उस खातून ने कहा था, मैं अपने शोहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मुझे बताया जाए मेरे मुस्तफा कहाँ पर तशरीफ फरमा है। उनमें से एक कहता है, ऐ खातून तेरा बाप भी दुनिया को अलविदा कह चुका है। अल्लाह अकबर। इसी इतना कहा था, उस खातून ने कहा था, ऐ नौजवानों, मैं अपने बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ कि मेरा बाप जिंदा है या मर गया है। मैं अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया है। मैं अपने शोहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मेरा शोहर जिंदा है या दुनिया से चल दिया है, बल्कि मुझे तो मेरे आका का पता बता दिया जाए। मेरे भाई जरा देखो तो सही, कितना प्यार किया था इसने आका से, कितनी मोहब्बत की थी इसने आका से। आका के सामने अपने बाप को छोड़ दिया, आका के सामने अपने भाई को छोड़ दिया, आका के सामने ना शोहर की परवाह थी, ना बाप की परवाह थी, ना भाई की परवाह थी। उस
اس نے مصطفیٰ کی بدولت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، بس زبان پر یہی ڈٹ تھی مجھے بتایا جائے مصطفیٰ کہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا اشارہ کر کے مصطفیٰ وہاں پر ہے، وہاں پر چلی جائیے۔ اللہ اکبر، اب جیسے ہی خاتون مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے، اللہ اکبر، آنے کے بعد میں جیسے ہی اس خاتون کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ اکبر، تو خاتون اپنی زبان میں یوں کہہ رہی تھی، کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اس خاتون نے یہ کیا تھا پیار، یہ عشق کیا تھا میرے بھائی۔ وہ مصطفیٰ کتنا حسین، ایک بار جو دیکھ لے دیکھتا رہ جائے۔ میرے بھائیو، آقا سے محبت کرے، آقا سے پیار کرے، آقا سے لگاؤ رکھیں۔ میں نے بتایا تھا یہ عشق بڑا ہی نرالا عشق ہے، اگر دل میں ایک بار بس گیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا بھی کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔